विद्यार्थी मित्रों, डिजिटल क्लास के अंदर आपको हार्दिक स्वागत है। तो આપણે આજે ધોરણ 8 માં દ્વિતીય સત્રની અંદર પાઠ નંબર 2 કચ્છ की शहर એ પાઠની ચર્ચા કરીશું। એ પહેલા આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વસ્મયાની પાઠ પત્ર એवं डायरी पाठ नंबर 1 ની આપણે ચર્ચા કરી હતી। તો એમાં વિવિધ પ્રકારના પત્રો હતા। એ પત્રોની આપણે વિશેષ સમજૂતી આપણે મેળવી હતી। એક નિમંત્રણ પત્ર હતો, બધાઈ પત્ર, આશ્વાસન પત્ર, અનુમતિ પત્ર, પ્રાર્થના પત્ર, નંબર 6 કાર્યાલય પત્ર અને નંબર 7 વ્યવસાય પત્ર। આ 7 પત્રોની આપણે ચર્ચા કરી હતી। ત્યારબાદ ડાયરી લેખનની પણ ચર્ચા આપણે કરી હતી। ડાયરી લેખનની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે ફરવા ગયા હોય તો આપણે આપણી ગીતામાં પાસે એક ડાયરી રાખીએ છીએ, એની અંદર આપણે નોંધ કરીએ છીએ, જેથી કરીને આપણે તે મુદ્દા પર આપણે ગમે ત્યારે એ મુદ્દા જોવા હોય તો આપણે તાજુબ કરી શકીએ છીએ। એમ આપણા ઘરની અંદર પણ કોઈ પણ આપણા જીવનની જરૂરિયાત કોઈ પણ આકસ્મિક ઘટનાઓ બની હોય એ આકસ્મિક ઘટનાઓ આપણે આપણી ડાયરીની અંદર લખી શકીએ છીએ, જેથી કરીને આપણે મોટા થઈએ 15-20 વર્ષના ત્યારે આપણે એ ડાયરીની અંદર જે નોંધ લખેલી હોય અને એવી ઘટનાઓ આપણા જીવનમાં બની હોય છે એ ઘટનાઓને આપણે તાજી કરી શકીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પત્ર એવं ડાયરીની શરૂઆત આપણે દ્વિતીય સત્રમાં કરી હતી અને આજે આપણે पाठ नंबर 2 की बात करवानी है। तो नाम से कच्छ की शहर। तो कच्छ की शहर यानी कच्छ की मुलाकात मित्रों ये આપણે સ્કૂલની અંદરથી કે આપણે પ્રાઇવેટ આપણા પરિવાર તરફથી કે પરિવારથી આપણે ક્યાં કે આપણે પ્રવાસમાં જતા હોઈએ છીએ કે સ્કૂલમાંથી આપણે કચ્છનો પ્રવાસ હોય અને કચ્છમાં કેવા કેવા જે જગ્યા સ્થાનો છે એ સ્થાનોનો આપણે પરિચય મેળવીએ છીએ અને ત્યાં કેવી કેવી પ્રકારની જે વિવિધતાઓ છે, એની એકતાઓ કેવી છે, એના જે કેવા મંદિરો છે એ ચર્ચાઓ બધી જ આપણે ત્યાં આ એક મુલાકાત દ્વારા મેળવીએ છીએ કે કચ્છમાં જવાથી આપણને શું ફાયદો થાય છે, કચ્છના લોકોનો પહેરવેશ કેવો હોય છે, એ જે આપણે બધી રીતે આપણે માહિતગાર થઈએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કચ્છ की શહેરની અંદર આપણે કચ્છમાં જે આપણે ગયા છીએ તો આપણને ખબર હશે કે કચ્છનું એક વાહન ઊંટ તરીકે રણનું એક વાહન ઊંટ તરીકે હોય છે। એ ઊંટને રણનું વાહન કહેવામાં આવે છે। એ અનેક જગ્યાએ નાના રણની અંદર આપણે અહીંયા બાગ કે બગલાઓ ત્યાં એ જળાશયોમાં જોવા મળતા હોય છે। તો આ કચ્છની મુલાકાત એકવાર અચૂક કરવી જોઈએ મિત્રો। તો આપણે એકવાર આપણે એરોની અંદર આપણે બચ્ચન એવું કહે છે, એક દિન તો ગુજારો ગુજરાત में तो एक दिन गुजारो कच्छ में। तो कच्छની મુલાકાત પણ લેવી જરૂરી છે। તો આપણે જોઈએ આ કચ્છ की शहर પાઠની અંદર તો સૌથી પહેલા એના જે લેખક છે હરેશ ધોલકિયા આ પાઠની અંદર વિસ્તૃત સમજૂતી આપી છે। તો જોઈએ मित्रों, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। ये गुजराती साहित्य के रचयिता है। अध्यापक के रूप में शिक्षण क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के बाद उन अनुभवों को लेखन कार्य में जोड़ा है। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नाम हरेश धौलकिया, जन्मस्थल कच्छ, व्यवसाय अध्यापक थे, मुख्य लेखन अंगदनो पग, 400% आनंद, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के विंग्स ऑफ फायर का अनुवाद अगन पंख शीर्षक से गुजराती में किया। कच्छ निवासी हरेश धोलकिया अध्यापक છે। હરેશ ધોલકિયા એક કચ્છના એક અધ્યાપક છે, ત્યાંના નિવાસી છે। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा
पत्रकारित्व आपके लेखन की क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखा स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सृजन कार्य अंगदनों पर 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है कि आप अपने अंदर अपने कच्छનો પ્રયાસ કે કચ્છનો પરિચય કે કચ્છ કેવું છે એનો પરિચય આપણે આ પાઠની અંદર જોવા મળે છે, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है कि कच्छની અંદર જે ધર્મ સ્થાનો છે એની દર્શनीय સ્થાનોનો પરિચય આ પાઠની અંદર કરવામાં આવ્યો છે। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो ये આ પાઠની અંદર કચ્છની યાત્રા કે આપણો પાઠ આ સમજી જઈએ એટલે આપણે ટૂંકમાં આપણે કચ્છની યાત્રા આપણે કરી લીધી એવું આ પાઠની અંદર ભાવાનુવાદ પ્રસ્તુત છે। તો સૌથી પહેલા આ કચ્છની શહેરનો પાઠનો આપણે વિડીયો જોઈએ, ત્યારબાદ એ પાઠની આપણે વિસ્તૃત સમજૂતી મેળવીશું। જોઈએ કચ્છની શહેરનો વિડીયો। आपने कई जगह की सैर की होगी। हमारा भारत देश अनेक दर्शनीय स्थलों से समृद्ध है। सभी स्थलों का अपना सौंदर्य और महत्व होता है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। उसका पौराणिक महत्व भी है। अनेक दर्शनीय स्थलों के वैविध्य के कारण उसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कहा जाता है। तो क्या चलना है? हाँ, तो चलो, हो जाओ तैयार चलने को कच्छ। मित्रों, देखो, हम यहाँ कच्छ में प्रवेश कर रहे हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहां से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धौलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। यहां से आगे बढ़कर जब हम सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते हैं तो भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहां सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, घूमने का मजा आ रहा है ना? हाँ, तो अब हम जैसे ही कंडला से दक्षिण की ओर आगे बढ़ेंगे, जहाँ भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है।
नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। मित्रों, अब देखो, हम नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर आ पहुंचे हैं, जो अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। यहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। यहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रथ से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है। उसके बगल में प्राणंध्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहरी प्राचीन स्थान है। देखो, अब यह कच्छ का मुख्य केंद्र भुज है। उसे देखते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया था, तो लोगों ने उसके नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। जैसे ही हम भुज से उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं, तो खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है। कहा जाता है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, તમે વિડિયો જોયો તો વિડિયો જોયો કે તમને ઘણો બધો થયું હશે કે આ મેં કચ્છમાં ગયા હતા, અહીંયા આવું જોયું હતું, અહીંયા આ હતું, આ ભુજમાં આવું જોયું હતું, આ અંજારમાં આ જગ્યાએ ગયા હતા, અંજારમાં જેસલ તોરલની સમાધિ જોઈ હતી। તો આ ઘણું બધું આપણને કે તરત જ આપણા મનની અંદર કે આપણું મન તરત જ એ કચ્છમાં વહી ગયું છે, કચ્છ તરફ વહી ગયું છે અને કચ્છનો પરિચય આપણા મનમાં થયા કરતો હશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ આ યાત્રા વૃત્ત કે આજની યાત્રાનું વર્ણન પાઠની અંદર विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। विशाल आ भारत के अंदर अनेक जगह के दर्शनीय दर्शन करवा प्रांत और प्रदेशों જોવા મળે છે। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। सब તેમનું महत्व બધાનું સૌંદર્ય જ હોય છે। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात आवा जे अनूठा है कि अनूठा विशिष्ट प्रकारનું एक राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। गुजरात में एक विशिष्ट जिलो है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। ते गुजरात में एक अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। यात्रियों જ્યારે યાત્રાઓ ફરવા જાય છે એમના માટે આ કચ્છ એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે।
इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। इसका पौराणिक જે મહત્વ છે જૂના પુરાણો એ પણ કોઈ ઓછું નથી કે ઘણું બધું એમાંથી આપણને સમજવા જાણવા મળતું હોય છે। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम कह सकते हैं। अनेक दर्शनीय स्थानों की वैविध्य विविध प्रकारનું આ કારણથી તેને મ્યુઝિયમ તરીકે પણ લોકો એને કહી શકે છે। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। જ્યારે કચ્છમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે બે ભાગમાં રેગિસ્તાન એટલે કે રણ પ્રદેશ એટલે કે મરુભૂમિ એટલે કે રણ પ્રદેશ આપણે ખુલ્લી જગ્યા જોવા મળે છે। એક छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान, एक नाનું રણ અને એક મોટું રણ। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं देखा जाता। इन दोनों में से रेगिस्तान जो रण जो बीजू कोई लक्षण क्या જોવા મળતું नहीं। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है कि रेत क्या नजर में आती नहीं। एक अनूठा विशिष्ट प्रकारનું આ એક रेगिस्तान रण प्रदेश। सामुख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं। सामुख्याली वचમાં જતા મિત્રો આપણે સામખ્યાલી આવે છે। એ સામખ્યાલી એ આપણું આ કચ્છનું પ્રવેશ દ્વાર કે કચ્છમાં આપણે પ્રવેશ કરી લીધો છે। એક કચ્છનું પ્રવેશ દ્વાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। कच्छ की यात्रा અહીં से आरंभ होती है। कच्छની જે યાત્રા છે એ સામખ્યાલીથી એ કચ્છની યાત્રા શરૂ થતી હોય છે। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। यहाँ से त्यागी उत्तर दिशा तरफ जाइए त्यागी क्या कच्छनी यात्राનો प्रारंभ થાય છે। रापट से धौलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। रापट થી ધોળાવીરા પહોંચી અને ત્યાં આપણે हमारी प्राचीन संस्कृति આપણે સમાજમાં ભણીએ છીએ મોહનજોદડોની प्राचीन संस्कृतिનું સ્મરણ યાદ આપણને જોવા મળે છે। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। आ जगह से 5000 वर्ष अवशेषों अंग क्या अपन जवाब મળે છે। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। क्या प्राचीन नगर आ दर्शन चकित आश्चर्यचकित થઈ જાય છે અને આવા કે અમે આ આજે પ્રાચીનતા અમે આ પ્રાચીનતા જોઈ આધુનિકતાના દર્શન અમને થાય છે। ત્યારબાદ સામખ્યાલી से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है कि सामख्याली આપણે पश्चिम तरफ જઈએ तो અહીંયા આપણે भचाऊ शहर આપણે नजर में आवे છે। जो बड़ा गांव है जैसे नगर जो गांव से नगर कौन से वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखाना का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। क्या गांधीधाम औद्योगिक कारखाना एक शहर से क्या सिंधी प्रजा के पाकिस्तान थी यहाँ આવી एक भचाऊમાં स्थायी થઈ હતી। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित अपने જોવા મળે છે। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास की कंडला बंदर का बड़ा महत्व है। आदिपुर में गांधी स्मृति गांधी जी यादों तथा पास कंडला बंदर का मोटू महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला નો विकास यहाँ की प्रजा के છે એના માટે महत्वपूर्ण રહ્યો છે। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। कंडला से आप दक्षिण की तरफ जाइए तो भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम आवेલું છે। संगमरमर शिल्पना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। संगमरमर से आरस पाणाथी आ बनावવામાં આવેલું આ 2500 વર્ષ પુરાણું આ જિનાલય આ ભૂકંપ 2001 ની અંદર આવેલા ભૂકંપથી આ ખંડિત થઈ ગયું। उसमें पुनर्निर्माण का कार्य जोर से चल रहा था। पुनर्निर्माण એટલે કે એ નવ બનાવો નવ કરવું
કે પુનર્નિર્માણ કાર્ય જોરો से चल रहा है, नવું मंदिर થઈ ગયું છે। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। मुंद्रा शहर तहसील એટલે તાલુકો, હિન્દીમાં તાલુકાને તહસીલ કહેવામાં આવે છે, એટલે મુંદ્રા શહેર તહસીલ એટલે તાલુકાનું મુખ્યાલય પણ છે। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली। यहाँ अनेक प्रकारना उद्योगों एनी कारण विकास की दिशा यहाँ खुली रही है। अनेक लोग यहाँ उद्योग में काम करी और પોતાનું जीवन जरूरियात पूरी पाड़े છે। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। समुद्र के किनारे एक बंदरगाह विकसित यहाँ છે। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें यहाँ घणी मोटी पुरानी मोटी इमारतों पर यहाँ જોવા મળે છે। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचते। समुद्र किनारे आप किनारे आप यात्रा करता करता આપણે मांडवी पहुंचे છીએ। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी है अति सुंदर के बहुत सरस बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है, बहुत प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। त्याना राजा के महल विविध प्रकार पवन चक्कियों या समुद्र तट दरिया किनारों के कारण अधिक दर्शनीय જોવાલાયક સ્થળ બન્યું છે। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। यहाँ VRTI नामनी एक ग्राम्य संस्था पण ત્યાં ચાલે છે। 72 જિનાલય ઘણા બધા એ જિનાલયો પણ ત્યાં જોવા મળે છે। पास ही बिदरा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल, पास एक बिदरा नामનું गांव છે ત્યાં अंतरराष्ट्रीय एक हॉस्पिटल પણ છે। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। क्या घણા मांडवी से आगे जाइए तो घણા બધા ગામ है, नाना गांवों बचवा आगे हो છે। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है कि बड़ी जगह जैनों प्राधान्य बड़ी जगह नजर જોવામાં આવે છે। नड़िया शहर तहसील का केंद्र है। नड़िया शहर आ तालुकाનું केंद्र છે। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। ये नड़िया वायुसेना मुख्य एक यहाँ अड्डा है, मुख्य कार्यालय है। नड़िया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। नड़िया की आप आगे जाइए तो आप જોયું હશે तो आगे जाइए तो घણા 1 કલાકનો રસ્તો છે તો અહીંયાથી આપણે નારાયણ સરોવર नारायण कसमा जो व्यक्ति गया है खबर है नारायण सरोवर मजा मंदिर से दरिया घाटे डूबवानी फरवानी मजा आती है। नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान ત્યાં આવેલું છે। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। आज स्थान ने के रामायण वखतનું માનવામાં આવે છે। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। कोटेश्वर नाम एक मंदिर आवे छे। कोटेश्वर पर આપણે બધા પ્રવાસ કરીએ છીએ આ કોટેશ્वर જઈએ છીએ। वहाँ से रावण गुजरात ત્યાંથી રાવણનો જન્મ થયો હતો। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। ત્યાંથી ભારતનું એક प्राचीन स्थान માનવામાં આવી રહ્યું છે। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। क्या सूर्योदय सवार में सूरज उगे और सांजे सूर्य आठ में एक જોવાલાયક દર્શનીય દર્શન કરવાનો મોટો એવો આકર્ષક કેન્દ્ર છે કે જ્યારે સૂરજ ઉગે છે ત્યારે એનો નજારો અલગ હોય છે અને આથમે છે ત્યારે પણ એનો દ્રશ્ય એક અલગ પ્રકારનું જોવા મળે છે। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। कि नारायण सरोवर से આપણે આગળ જઈએ તો લખપત નામનું અતિ प्राचीन स्थान આવે છે। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। गुरु नानक ની चरण रज यहाँ गुरुद्वारा सिखों का धार्मिक स्थल कि सिख धर्म જે શીખ લોકો છે એમનું ધાર્મિક સ્થળ એ ગુરુદ્વારા પણ ત્યાં આવેલું છે। एक समय का समृद्ध शहर आज जड़ावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में
आनंद खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लगभग से मध्य कच्छ की ओर बढ़ते पर हम हाजीपुर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। तो लगभग आप मध्य कच्छ की तरफ जाइए तो अजमाएगा हाजीपुर के मुसलमानों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र स्थान क्या आवे छे। यहाँ पीर की मजार है, यहाँ पीर की मजार है दरगाह या पीर की एक मोटी दरगाह है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रेगिस्तान में झांकी क्या ग्रहण की झांकी આપણે અહીંયાથી જોવા મળે છે। रास्ते में माता का मठ, रस्ता में माता नो मठ पण आवे छे, ત્યાં માતાનું મંદિર છે, ત્યાં પર આપણે ફરવા જોવાની મજા આવે છે। नामक धार्मिक स्थान है जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थी आते हैं। જ્યાં નવરાત્રિના પ્રસંગમાં નવરાત્રિ હોય ત્યારે લોકો પગ યાત્રા ચાલીને આ શ્રદ્ધા ભાવ વિશ્વાસ રાખી દર્શન કરવા માટે એ માતાના મઢે લોકો ત્યાં ચાલતા આવતા હોય છે। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। इनसे आगे जाइए नखत्राणा आवे छे। नखत्राणा एक प्राकृतिक नजारों केंद्र ત્યાં છે। रास्ते में चक्स पुरेश्वर मंदिर वांडाय जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। कच्छમાં ઘણા બધા એવા ચક્સ પુરેશ્વર મંદિર વાંડાય आज जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान वचમાં आवे छे। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। कच्छ का मुख्य केंद्र છે ભુજ। કચ્છનું મુખ્ય કેન્દ્ર ભુજ છે। ભુજમાં આવો ત્યારે વૈભવનો પરિચય આપણને થાય છે। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामिनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीर सरतलाव, पूज्या बहार, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करने में हमें आनंद ले सकते हैं। अब भुजनी अंदर अब જોવાલાયક સ્થળો છે। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया। सन 2001 में जब धरतीकंप આવ્યો ત્યારે આ બધા ભૂચાલ खंडित કરવામાં આવ્યું। तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पूर्ण निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। કે લોકોએ એને ફરીથી નવું નિર્માણ કરીને આ ભુજને જે સ્થળોને એક નવું બનાવી દીધું છે। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। भुजनी उत्तर दिशा तरफ जाइए ये આપણે ખાવડા નામનું આવે છે। ત્યાંથી કાળા ડુંગર પ્રખ્યાત છે। કાળા ડુંગર આવે છે। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। ये पहाड़ पर चढ़ीने रेगिस्तान રણની નજર આપ કરી શકીએ છીએ। અનૂઠા વિશિષ્ટ પ્રકારનો અનુભવ પ્રગટ થાય છે। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा त्या रणोत्सव कार्यक्रमों आयोजन करवामां आवता होय छे। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। देश भरना लोग देश प्रदेश लोगों बधा त्या आवता होय छे। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। सफेद रणने जोवा माटे लोको अहींया आनंददायी घटना छे। भुज से अंजार भी जाया जाता है। भुज से આપણે अंजार પણ ત્યાં જવાય છે। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होती है। ત્યાં આપણે અંજાર में જઈએ તો એ કચ્છની અંદર બધા લોકો હસ્તકલા કે ભરતથી એ આપણે જોઈએ છીએ આપણે ઊંટવાળા જે આવતા હોય છે કચ્છી લોકો એ નવરા હોય ત્યારે એ પ્રકારનું ભરત ગૂંથણી કામ જે ચાલુ હોય છે કે ભરત ગૂંથણી કાર્ય કામ હસ્તકલા હાથની કલા એ એમના વસ્ત્રો એ બનાવતા હોય છે। आगे जो अंजार में जैसर तोरण स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है अंजार के अंदर जैसर तोरण जहाँ समाधि से ये मंदिर से एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम धाम जा सकते हैं। यहाँ से आदिपुर पासा गांधीधाम तरफ पासा आ सके।
सूरजबाड़ी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। तो सूरजबाड़ी नामक एक स्थान से ત્યાં આવેલી અમારી કચ્છની યાત્રા પૂર્ણ થાય છે। जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है, अपनी जो विस्मरणीय याद न करने वाली अपनी यादों क्या छोड़ी जाती हुए से कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। वो बच्चा निर्णय कराती है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। एक बार को गुजारो गुजरात में तो आप कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। कच्छ गुजरात में गौरव बनતું શહેર છે, જિલ્લો છે અને આ દુનિયાભરના જે લોકો માટે પણ અહીંયા મોસમ દર્શન કરવા માટે આકર્ષક એક કેન્દ્ર તરીકે અહીંયા ઉપસ્થિત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પણ જે લોકો કચ્છમાં ના ગયા હોય તો કચ્છમાં જવું, કચ્છમાં ઘણા બધા સ્થળો એવા છે કે આપણે જોવાથી આપણે ખૂબ જ પ્રકારનો આનંદ થતો હોય છે। તો અહીંયા મિત્રો આપણે કચ્છની યાત્રા પૂરી કરીએ છીએ। તો આપણે કચ્છમાં ગયા હતા, પાછા આપણે આપણા ઘર તરફ પ્રયાણ કરીએ, પાછા આવી ગયા છીએ। તો હવે અત્યાર સુધી આપણે કચ્છમાં હતા, તો કચ્છનો પ્રવાસ આપણે પૂર્ણ થાય છે। તો આપણે પણ એક કચ્છ કે દર્શનીય સ્થાનો કે ચિત્ર એકત્રિત કીજીએ કે કચ્છના પણ એવા બીજા કોઈ એવા ચિત્રો હોય, જોવાલાયક સ્થળ હોય, એના ચિત્ર આપણે નોટ પેજની અંદર લગાડીશું અને એનો વિસ્તૃતપૂર્વક એનો આપણે ઉલ્લેખ કે દર્શાવીશું। અને આવી રીતે આપણે નવી નકશા રૂપિયા આ બધી આપણે આયોજન રેડી કરતા રહીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે આપણો પાઠ પૂરો થાય છે, તો એનું સ્વાધ્યાય આપણે નોટમાં લખી તૈયાર કરીશું। આભાર।